अच्छा तो मुझे ये बताओ कि लाइक फैमिली में सब लाइक यू बोथ आर बहुत पढ़ी लिखी और अच्छी फैमिली, डिसेंट फैमिली, और बहुत से लोग जो हैं अब तो शायद नाउ रिसेंटली थिंग्स हैव स्लाइटली चेंज्ड, वेल नॉट चेंज बट स्टिल थोड़ा एक्सेप्टेबल हो गया, बट आज से कुछ साल पहले 5, 6, 7, 8, 10 साल पहले भी मैं समझूंगा कि बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं समझा जाता था पेरेंट्स की तरफ से कि हमारी बच्चियां जो वो ये काम करेंगी. बट इन योर फैमिली बिकॉज योर सिस्टर वाज ऑलरेडी इनटू मॉडलिंग, तो यू इट वुड हैव बीन ईजी फॉर योर family to accept you as a model, but maybe what about you? Was it difficult? Not at all. Not at all. Ehsan, I totally give this credit to my parents. Like जैसे हम tomboy की बात कर रहे थे, I haven't been raised as a girl or a woman per se. Okay. I've been raised as a person. ठीक है. तो मुझे कभी ये नहीं बताया गया कि because आप लड़की हैं तो आपको ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए. मुझे कभी ये बात ही नहीं आई, question में ही नहीं आई. It was always कि you're a person who has to fend for yourself. You have to do, complete your education or whatever, and do whatever you want to do in life. Thank you. But can I add something over please. here? So in my case, there was no resistance from my immediate family. लेकिन ऐसा ज़रूर है कि society में and ख़ानदान में there was always this perception that yes, girls who go into media or girls who go into the show business or modeling industry, fashion industry, they are always not the good girls or the like, I mean they all have their perceptions. So yes, there was that, and I did face it, and I did tell them that. So I'm kind of an example right now for my younger cousins. Okay. कि आप ऐसी इतनी, of course, the industry is cutthroat. The industry is difficult. ठीक है. कुछ ऐसे चीजें करनी होती हैं आपको, by like modeling में आपको टाइम भी आ जाता है, रिवीलिंग कपड़े आ जाते हैं, बड़ी सारी चीजें आ जाती हैं जो सोसाइटी में अभी तक एक्सेप्टेबल नहीं है, and I understand that. But उसमें रहते हुए भी I think you can make a good name for yourself, and this is a pretty respectable industry now. Yes, it is. It is a good money making, career oriented industry जिसमें सिर्फ modeling ही नहीं है in front of the camera. You can do a lot of things behind the camera as well. पहले तो ये भी होता था ना कि लड़कियों को जैसे अब हमारे चैनल पे ही देख लें कितनी ज्यादा लड़कियां अब हमें प्रोडक्शन में नजर आती हैं. मुझे तो नाम ही नहीं लड़कियों के मालूम. दैट क्योंकि पहले प्रोडक्शन में ही लड़कियां नहीं होती थी, सिर्फ मर्द होते थे क्योंकि लेट आवर्स की वजह से. So things are changing, I believe. Which is wonderful. Yeah. Which is wonderful. अच्छा, मैंने आमना के साथ तो एक काम किया हुआ, मैंने इसको देखा है कि ये ना मैं बड़ा नॉन सीरियस नहीं हूँ, लेकिन मैं टेक जब होती है ना, यानी कैमरा ऑन होने से पहले आई एम वेरी somehow I give a vibe of doing nothing and not rehearsing, not practicing. And I am not like that. And she is like overly. यानी मुझे मैं कह रहा हूँ यार, पर अब मैं चेंज हो गई हूँ, अब मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई हूँ. But which is good. We were performing at a very big award show, me and Amna together. छोटा सा एक्ट था, तो मैंने बोला यार आमना तो 100 रिहर्सल्स कर रही है यार, मैं तो तंग आ गया हूँ, ये लड़की रिहर्सल. But then because हम लोग एक certain point पे आके ना थोड़े easy होते, but I also saw the difference. She was looking so good on the stage. So what I feel that कि जब आप passionate अपने काम के बारे में थे, then आप कहीं ना कहीं पहुंचते जरूर हैं. Absolutely. अब बहुत ज़रूरी है. अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि सारे काम जो करती हो उसमें से सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा काम? मुझे? हाँ. यार, there is not a single aspect of this business that I don't like. I'm blessed. I'm blessed that I do everything that I love and I get fame and money and respect. ज़ाले का थोड़ा क्लोजअप और बने. पता नहीं क्यों मुझे ज़ाले ना प्रियंका चोपड़ा जैसी लग रही है. She hates it. She hates this compliment. ये क्लोजअप आया. अच्छा, क्या? Why? ऐसा ना आदित्य पंचोली जैसे क्यों लगा? Oh my God. यार मुझे अच्छा एक मिनट. Okay, fine, एक मिनट. I absolutely am a huge fan of आदित्य पंचोली. I love him. I love him. अग्नि, उसकी फिल्म याद है? But that being said, you by the way, आदित्य पंचोली के साथ मेरी बहुत गपशप और मुलाकात हुई. Really? Yes, of course. way. So whenever if I've ever gone there, I go to their place also. But anyhow, ठीक है, अपनी तरफ से बड़ा छक्का मारा था लेकिन नहीं लगा. मारा तो है. अच्छा, तो क्या प्रियंका चोपड़ा इतनी प्यारी है? नहीं, बहुत प्यारी है. I just don't want to look like someone. I have my own identity. I am a big fan of her. कभी ऐसे भी resemblance हो जाता है. यार, मैं जब से आई हूँ ना एहसन, जब से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, तब से मुझे यही कहा जा रहा है. इनफैक्ट एक इंडियन पब्लिकेशन ने ये भी छाप दिया था कि ये बॉडी डबल है. अच्छा, बॉडी डबल. सॉरी, तुमने छापा था. बॉडी डबल बना दिया बेचारी आर्टिस्ट को हमारी. बॉडी डबल. मैंने तो एटलीस्ट फिर अच्छा गाया कि छोटी बहन है कुछ. तुम तो अच्छा, बाय द वे, तुम शुक्र करो कि तुम्हें सिर्फ एक इंसान से मिला है. हाँ, मुझे इन माय एंटायर करियर मैं हर महीने बाद लोगों को कुछ और लग रही होती हूँ. It's so weird.
ये मैं ज़ारा शेख लगती हूँ, मैं मीरा लगती हूँ, मैं मलाइका अरोरा पर लगती ये हूँ। सारी लड़कियां है ना, I अब don't- ना ये सारी लड़कियां है ना, हाँ। मुझे कहा गया था नहीं एक नहीं, दफा- लड़का भी है भैया, एक मिनट। कौन है? कौन? कौन? मेरी एक दोस्त मुझे कहती है आके, जाले में तुम्हें कहना चाह रही थी कि तुम बहुत मिलती हो किसी से जिसको मैं जानती हूँ। मैंने कहा कौन? अच्छा मैं सोच रही हूँ पता नहीं कोई नाम आएगा ना, वो बड़ा सुष्मिता सेन आ जाएगा। नहीं, मेरे जो चाचू है ना, बस उनकी मूंछें हैं। कहा यू फॉर रियल व्हाई? और तुम्हें पता है मुझे किससे मिला है? गेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री, अ बॉय। किसी ने मुझे कहा कि मेरी शक्ल मोहसिन अब्बास हैदर जैसी है। Which is not bad, I mean, but मोहसिन मतलब फीमेल वर्जन और मेल वर्जन हो ही सकता है। बट या नो यार, लेकिन क्यों? किसी देखो, बात ये नहीं, अगर कोई मुझे ये भी कहेगा ना तुम्हारी शक्ल एहसन खान जैसी, तो मैं कहूँगी क्यों? तुम हो तो मर्द ना। तो क्या मतलब Precisely. फहद की, मुझे याद है फहद मुस्तफा की एक पिक्चर आई थी जिसमें दीपिका जैसी दोनों की लुक लाइक कोई उन्होंने कहा था। Really? हाँ एक पिक्चर आई थी। That's लोग true बहुत actually, शौक और है। पता है I did find the resemblance. It's so अच्छा। weird. I कि वो think उस it's the तस्वीर में- मोटी-मोटी आंखें। उस तस्वीर में लग रहा था। वैसे तो हम पूछेंगे फहद से कि फहद खुशी होगा दीपिका पादुकोण से मिला रहे हैं। हैं। अच्छा अब मुझे ये बताओ, दोनों लड़कियों ने अपने अपने पॉइंट पे लाइक ड्रामा टेलीविजन में, लेकिन फिल्म भी की है। अच्छा एक तो फिल्म में तो ये क्यों नहीं कैप्चर किया जाले का ये वाला एक्सप्रेशन क्यों नहीं कैप्चर? फिल्मी अदाकार जाले सरहदी और इलियास। अच्छा और किया भी, जाले ने फिल्म भी की, फिर उसमें एक सॉन्ग था, बड़ा आइटम नंबर शॉर्ट सॉन्ग था। तो दैट्स डिबेटेबल। That's debatable? Yes. आइटम नंबर नहीं था वो। नहीं नहीं, वो आप अगर देख लेंगे तो मुझे तो आज तक यही सुनने को मिली है किस किस्म का आइटम नंबर था, तुमने इतने कपड़े क्यों पहने हुए थे? यहाँ तक कि आस्तीन थी, जरूरी तो नहीं कि आइटम नंबर नेकलेस भी नहीं था। आई थिंक मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। कुछ मुझे 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 थी कि डांस ही तूने जम के किया, मुझे ये था अरे कि नहीं, थोड़ा और मैं आपको जोश बताऊं में क्या? नाचती नहीं, आप। मैं आपको उसकी कहानी सुनाती हूँ अगर हम इसी पे आ गए ना। मैं हाँ। अपनी दुख भरी दास्तान सुनाना हाँ, चाहती please सुनाओ, हूँ। please। आई एम अ गुड डांसर। मैंने एहसन के साथ भी काम किया हुआ। हाँ, of आई कैन course। डांस, ओके। Very well। मेरे साथ जो अलमिया हुआ था, 2 हफ्ते जिस चीज के ऊपर मैंने रिहर्सल की थी, वो लाहौर के बारी स्टूडियोज में जाके वो एक दिन में मुझे कोई और स्टेप्स करवाए गए हैं। मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है। टिश्यू ले लो, आंसू आ रहे हैं। कैमरे पे नहीं आने चाहिए। टिश्यू ले लो फौरन। सुन के मेरे साथ जुल्म हुआ था। अच्छा मुझे तो फिर भी उसमें अच्छी लग रही है, लेकिन काश के ये वाले मसाइल लोगों को पता होते Yes। कि एंड ऑफ द डे तो एक्टर पे सारी बात आती है। हम Yeah। कुछ भी करते हैं और जो पीछे मसले मसाइल चल रहे होते हैं, वो किसी को नहीं एंड ऑफ द पता डे एक्टर पे होता है कि यार ये ठीक नहीं नहीं कर था, सकते। यूं नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं पता। अच्छा you've done such a big film, I was with such a big director also. I mean you looked wonderful in the film. I'm amazed कि दोबारा उस तरह से फिल्म क्यों नहीं की अभी रिसेंट टाइम में? शायद कर रही हो, अभी पूछूंगा। And your film बाजी, you looked gorgeous, absolutely wonderful performance, wonderful song, and that song don't be silly वाला? Don't खिलती खिली, don't खिलती be खिली। silly. Yeah. और क्या उसमें परफॉर्मेंस थी, तो Thank कितना you. कैसा एक्सपीरियंस था फिल्म का यार? Yeah, I think working with Saqib Saqib. especially, I think it was an honor, I would say, to work with him. क्योंकि उस जैसा director, attention to detail and such a big film and taking such a big risk, especially in Pakistan, जहाँ पे women oriented फिल्में नहीं बनती। फिल्में आज भी male centric बनती है कि हीरो पे फिल्म बनती है। तो इस तरह का रिस्क लेना in itself I think was great कि उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसमें दो औरतें हैं, हीरोइन, दो हीरोइन की कहानी, 2 एक्ट्रेसेस की कहानी। So I think yes, working with Saqib, working with Meera, working with Nayyar Ijaz Sahab, Mohsin, all of these guys were so amazing and I had an amazing experience. It was a full experience. Dance, emotions, Everything. drama, action. There was Yes. everything in the film, so I really can't complain. Such a well-shot film and you look lovely. Yes, उस एक फिल्म में मैंने अपने पूरे जितने शौक है ना, पूरे कर वो लिए। मैंने सारे पूरे तो अभी किए। दूसरी ठीक है।